You know, viewers, the taste of a fruit, you know, it tastes sweetest when the seed of that is laid in barren land. You know, हरी भरी जमीन के ऊपर जहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल होती है और मिट्टी बहुत फर्टाइल है, वहां पे आप बीज बोएं और उसके बाद यू नो उसका फल निकलेगा और उसको आप टेस्ट करेंगे. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग. लेकिन कभी ये सोच के देखिए कि रेगिस्तान से आप गुजर रहे हैं और वहां पे अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है. आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हैं, डॉक्टर नवीन धाम, जिन्होंने 8th क्लास के अंदर जॉब ज्वाइन करी. यू नो, ही स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज फाइनेंशियली दे वर नॉट वेल. तो पूरा परिवार संभालते हुए, अपने पापा की मदद करते हुए इन्होंने वहां से अपनी जर्नी शुरू करी. 1996 में इन्होंने डिप्लोमा किया, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का सिंपल डिप्लोमा. आप सबको पता है क्या है. एंड टुडे ही हैज अ कंपनी वर्थ करोड्स. और 2017 में उन्होंने मास्टर्स किया एंड द कंपनी इज सर्टिफाइड टुडे. डॉक्टर नवीन धाम, थैंक यू सो मच. कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. मतलब आपने जब बताया, व्हेन वी वर डिस्कसिंग, कि 8th क्लास में आपकी लाइफ जिस तरह से यू नो एक करवट ली और उसके बाद आपने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया. तो मैं पहले यही जानना चाहूंगा, क्या आपका प्लान पहले हमेशा से ऐसा था साइबर सिक्योरिटी का? हाउ डिड इट ऑल बिगिन? No, it was not like that. So when I started, like when I was in 8th class, so I thought I should not put burden on my father, and since he was handling this huge family, so I thought why not to work or do something so that I can take out my school fees by myself. So I started giving the tuitions to the students, and from that only the money which came from the tuition, I used to give that to the school at that time. तो आप अपनी स्कूल की फीस वैसे भरते थे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते थे, ऑब्वियसली, डेफिनेटली. सो फिर उसके बाद आपने 1996 में आपने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का डिप्लोमा किया. Yes. तो आपने सोचा था कि करियर उसी के अंदर बनाएंगे अपना? No, I wanted to become a cardiologist, a doctor. But after 12th, when I gave these medical exams, and I was selected in Chennai for this MBBS. Since it was Chennai and the cost was very huge, so I thought it will again become burden for my father. So I thought to change the line, and at that time I thought of going to the computers line because it was booming at that time. So started working as a started this training institute I joined, which was CMS Institute for Networking and Hardware engineering. So it was 1-year diploma. I joined that, but the fees was very high again. So I thought the fees is very high, what to do? My father, again it will be a burden, and the money which was coming from the tuitions was not enough to to support the fee. Yeah. So what I did is I thought of doing a job, and I got a job as a salesperson in one of the companies for telecom products. So I thought that is a good way to start, and due to that only I got a flavor of sales in myself. Okay. That was the first job which I started as a sales. नहीं, actually होता भी ऐसे है. See what happens, life is a wonderful, I always love this dialogue from Forrest Gump where he says life is a box of chocolates and you don't know what you're going to get next. Right? Each one tastes different, So the bittersweet experience is always there. लेकिन it all depends on how we respond to these situations. क्योंकि आपकी लाइफ को देख के ये पता लगता है, like आज आपके पास जब नहीं था तब भी आप इतने गिविंग थे कि आपने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करके ऐसे करूंगा. वो एक ना सेवा और देने का भाव होता है. और आज आप करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं, एंड यू हैव टैलेंट शोज रनिंग ऑल ओवर द कंट्री. यू स्टिल आर गिविंग सो मच टू द सोसाइटी. तो ये कहां से आया? हाउ डिड यू बैलेंस दिस? I had a thought that like we should give back to the society, like whatever we can. So what happened is, in like few years back, I have seen some students who were committing suicide, and some people committing suicide due to non-employment. So I thought, why not to pay them for their talent, not for their education. So what to do in that case? So I invented this KidFlix, and the company by the name of KidFlix, I floated that, and under that
we started an application which is OTT channel, which is called Kids Joy. So in that channel, we created one talent hunt corner wherein Okay. anybody can upload his talent, whether it's a singing talent or dancing talent, Any kind of talent. kind of talent. Viewers, are you paying attention to this? It's very interesting. So why not to pay them for the talent which is blessed to them by God? Yeah. So this is what I thought, and using that talent, let's say somebody has been selected in singing or dancing, we give them chance in our movies or web series which we have created in that particular OTT. So this is how they will earn. My goodness, मतलब आपने पूरा starting से लेके end तक like a supply chain management, like an assembly line of career आपने, you have built it, like you enter raw or you just come up with the talent that you have, raw talent. आप industry में direct आप enter कीजिए and come out as a finished product in an OTT channel. How amazing is that? Though it is not related to my cybersecurity, but it was totally a noble cause which I used to start and give back to the society by this. I was just telling a friend of mine who brought me to the studio today that the kindness you give out into the world, मतलब वो ना उसका एक अपना रास्ता होता है आपके पास वापस पहुंचने का. तो मैं आई एम ओनली लुकिंग एट दैट कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद आपका देने का एटीट्यूड, सेवा करने का, हेल्प करने का एटीट्यूड नहीं गया. ये सब चीज एक तरफ, इतना बड़ा काम है ये अपने में ही एक बहुत बड़ी ये एक जद्दोजहद है, दिस एंटायर टैलेंट एंड ओटीटी, उसके बीच में बीइंग सर्टेन सर्टिफाइड. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि like I told you that when I did my computer hardware engineering, after that I got my first job in the company which was free of cost. Like I was a trainee hardware engineer, so I was not given any salary, but in 1 month only I proved my metal, and due to which they started giving me salary from next month. And that was a kickstart for me. And after that, I hopped different companies, and even Wipro I worked for 3 years. And after Wipro, I joined Serco, which is a service company in UK. So I joined that, and over there, I joined as a IT manager. But I would thank to the management of Serco, who saw that this person has a potential in going to the information security field. Okay. There they gave me a chance to go for a certification for information security, and that's when you went into BTech. Yeah, 2007 May, if I'm not wrong. 2007 was my BTech, which I did during my job itself. So I was doing that. But when Serco gave me a chance for a certification for ISO 27001, which is a information security standard, okay, they sent me over there, the management, for getting certified. It was a 5 days of program. I did that. Yeah, they usually have something like that. Yeah. Then I got certified. They said, now you are certified, you get the company certified. Get this company certified. Then that was a kickstart for my cybersecurity, domain. Business. And in 2006, so I did that. I certified that company, and in not only one location, I certified 43 locations altogether. And it was a huge experience for me in a short while. And that a person cannot get that experience in 10 to 15 years also. Absolutely. So that when I got this certification done, and after that when I left Serco, I started my own in 2012 by the name of Global IS Consulting. That was my first firm, which was a proprietorship firm. Okay. So the very first customer was Panasonic. Okay. Then I got Wipro, ASL, HCL, Stellar Data Recovery, Punj Lloyd. Absolutely. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे. इस पूरे डिस्कशन में मैंने देखा आपने कितना, मतलब यू हैव शेड लाइट ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स. आपने काफी चीजों पे प्रकाश डाला और हमें बताया कि कैसी आपकी लाइफ की जर्नी रही है. एंड आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे. आपकी सिंप्लिसिटी के पीछे क्या राज है? दिस इज समथिंग मैंने आज तक किसी गेस्ट से नहीं पूछा. मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ. पहली बार पूछ रहा हूँ मैं ये चीज, बिकॉज इतना कुछ करते हुए इतना हम्बल और सिंपल रहना
कोई तो बात होगी जो आपको भी इंस्पायर करती होगी। वो क्या है, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो जरूर उनमें से कई लोग आपकी बात सुनकर अपनी जर्नी पे आगे चलेंगे। The only thing which I believe is I believe in God, so Almighty, and you know I wake up early in the morning at around 4, and offer prayers, and that is what is the reason the God has put those things in me of simplicity. So I always think to give back to the society and be simple, and simple living is high thinking. How beautifully put and how amazingly lived through all your life. In reality आपने जी के दिखाया उस चीज को। Viewers, I'm so thankful to Dr. Naveen Dham। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए हमारे बीच और आपने अपने व्यूज शेयर करे सबके साथ। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि वी नेवर नो कि अगले मोड़ पे क्या होने वाला है। रास्ता लाइफ का ऐसा होता है कि यू कीप वॉकिंग अहेड, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम on the next turn. But the beauty of adventure lies in that, and the beauty and the greater beauty lies in accepting whatever happens. I think आपने ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया कि जो आपकी लाइफ में होता गया आप उसे एक्सेप्ट करते गए और उसको लेके आगे चलते गए कि ये तो मेरे हाथ में नहीं था, जो मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा, जो उसके हाथ में है वो करेगा। Thank you so much for being with us over here, and I thank Cloud Access, the most secure cloud platform, our sponsor, rupiapaisa.com, transforming the lives of people around the country, and of course Benson Trophies and Awards, the #1 trophy manufacturer. I feel amazing in a luxury suit, and if I'm shining today, it's because of Nupur Gupta Makeup Academy. Thank you for being over here. Thank you so much, Dr. Naveen Dham. You have enlightened us all, and we wish you the best for your onward journey. My pleasure. Is actually a wonderful artist and all. जी देखिए, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है हमारा। मेरी वाइफ आर्टिस्ट थी एंड उनको कुछ करने की इच्छा थी, तो उन्होंने पहले ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया, जेमोलॉजी का कोर्स किया। So viewers, I have come back to you with a wonderful question. मेरे पास एक सवाल है, अगर हमें हर एक चीज़ का जवाब पता होता कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, then why were we born? हमें पैदा ही क्यों होना था? Life is a mystery, जैसे कि हमारे पहले गेस्ट के साथ हमने डिस्कवर किया, इट्स लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, फॉरेस्ट गंप माय फेवरेट डायलॉग। बट देन ये भी है कि अगर हम एक कदम आगे लेते हैं, एज एंड व्हेन वी कीप टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड, उसी टाइम एवरी मोमेंट ऑल्सो चेंजेस इनटू द पास्ट, और वो हमारे वश में नहीं है। जो चला गया समय वो हमारे वश में नहीं है, जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं है। जो हमारे हाथ में ये पल है, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट, इट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट होगा ना, बर्थडे का प्रेजेंट, इट इज अ गिफ्ट, एंड व्हाट वी डू नाउ विद दैट प्रेजेंट इज व्हाट विल रिवील इन द नेक्स्ट 4 years। अगर आज मैं वहां पे एक कांटों का पेड़ डालूंगा, उसके बीज डालूंगा, तो 10 साल बाद कांटे ही निकलेंगे। और अगर मैं गुलाब का पेड़ लगाऊंगा, अगर उसके बीज डालूंगा तो गुलाब ही निकलेगा। और उसका एक स्टैंडिंग एग्जांपल है हमारे बीच हमारे नेक्स्ट गेस्ट, जो है मनोज अग्रवाल, निराकारा ज्वेल्स के फाउंडर हैं, एंड अमंग द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट परस्यूड हाई क्लास एलीट ज्वेलरी, राइट? थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। और हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी का सबसे लेना देना क्या है, तो मैं आपके मुख से ही सुनना चाहूंगा कि सर, एक मैं बात जानना चाहता हूं। Starting off from your grandfather's business, which was into food grains. Yes. आपके father का business into steel. Yes. And jewelry, there is no relation, and you've become the biggest name in just 10-15 years. Yes. How did you do it? बेसिकली चूँकि हमारे ब्लड के अंदर बिजनेस था, मेरे फादर जैसे कि आपने बताया ग्रैनुअल्स में थे, मेरे फादर स्टील बिजनेस में थे, एंड उसके बाद सडनली जो मेरे फादर हैं वो स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए थे, एंड उसके बाद मैंने कहीं नोटिस किया, कई बिजनेसेस किए, एंड मैंने नोटिस किया कि भाई मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड मेरी वाइफ ने जो है ज्वेलरी का कोर्सेज वगैरह किए, एंड उसके बाद फिर हम उस ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एंटर कर गए। एंड जब ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एंटर करे तो हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था कि ज्वेलरी जो है वो ट्रस्ट का काम है, एंड उस ट्रस्ट को हम कैसे बनाएं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड हम स्लोली हम उसके अंदर आगे बढ़ते गए, एंड आज
और आज आपके 2 शोरूम्स है, एक एनएसपी में और एक साउथ एक्स में, दोनों वन ऑफ द टॉप मोस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशंस के अंदर हैं। एंड दिल्ली, एनसीआर एंड नॉर्दर्न इंडिया के आप समझिए कि जो भी अगर अच्छी शादियां होती हैं एंड जिनको फाइन ज्वेलरी चाहिए होती है, अच्छी क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है, अच्छी डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करते हैं। सर मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये ट्रांजिशन तो आसान रहा नहीं होगा, क्योंकि ना आपको अंदाजा था उस बिजनेस का। देखिए, इवन आई एम अ बिजनेस ओनर, देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स हु कम एंड सिट विद अस एंड डिस्कस विद अस, राइट? अब मैं अगर किसी चीज का बिजनेस करना चाहूं, मैं फ्लावर शॉप तो कर सकता हूं, बट अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप ज्वेलरी का बिजनेस भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकता हूं। तो वो अंडरस्टैंड करना, बिजनेस के एथिक्स तो मैं समझता हूं, एस्थेटिक्स ऑफ बिजनेस रिमेन द सेम, but where did you find that courage to get into a jewelry business? Was it only because कि आपकी wife is actually a wonderful artist and all? जी देखिए, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है हमारा। मेरी वाइफ आर्टिस्ट थी एंड उनको कुछ करने की इच्छा थी, तो उन्होंने पहले ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया, जेमोलॉजी का कोर्स किया एंड प्लस हमारी जो बिजनेस जो फोर फादर से जो हमारे चले आ रहे थे, वो जो हमारी ट्रिक्स थी, जो हमारा वे था, जो ट्रस्ट गेन करने का तरीका था, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन करके हम उसके अंदर आगे बढ़े। एंड इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली खाली हम ज्वेलरी नहीं है, बेसिकली वी आर अ ज्वेलरी इंजीनियर। अभी मेरे दोनों सन भी इसके अंदर आ गए हैं एंड मेरे जो बड़े सन उन्होंने GIA कैलिफोर्निया कार्लबर्ट से उन्होंने डायमंड ग्रेडिंग की है एंड मेरे जो छोटे सन हैं उन्होंने रफ डायमंड ग्रेडिंग की है। तो बेसिकली हमें पूरी ज्वेलरी की नॉलेज लेके फिर हम इस बिजनेस के अंदर एंटर करें। जैसे एक इंजीनियर सब कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसी फील्ड में उतरता है। एब्सोल्युटली, मतलब मैं समझ, सी एवरीथिंग हैज इट्स ओन बैक एंड फोर्थ, हर एक के अपने मतलब लर्निंग कर्व हर एक का अपना होता है जी। तो आपको जब आप इतने इस बिजनेस में एंटर किए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं पूछा, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे, there might be many who might be interested in this kind of a profession and they might want to take step. What are the 3 most important things आप जो कहना चाहेंगे which is very very important for those looking towards this field? देखिए, सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैं ज्वेलरी फील्ड की बात करूं, एंड उसके बाद क्राफ्टमैनशिप कि आप उसकी नक्काशी, उसको कैसे चीज़ को बनाते हैं, कितने फाइन तरीके से बनाते हैं, एंड जो आपका सोर्स है, जो डायमंड है, गोल्ड है, आप राइट सोर्स से लेके एंड उसको प्योरिटी लेवल, यानी कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने HUID जो हॉलमार्किंग सिस्टम है अभी मैंडेटरी किया, लेकिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2005 में, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारे पास ज्वेलरी हॉलमार्क लाइसेंस था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है। हाँ, क्योंकि डिसीजन आप ही का है, एट द एंड ऑफ द डे आप जो करना चाहेंगे वही करेंगे और वही होगा भी। सो व्हाट एवर प्रिंसिपल्स यू सेट इन द वेरी फर्स्ट गो विल गेट इनग्रेन्ड फॉर द रिमेनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस। Now, I want to come to a very, very important and critically, socio-politically important question. मेरा मानना ये है कि women are the stronghold of the home and also of the business and of any profession. True. I think they are much stronger than men. जो मेरा मानना है. And आपसे जब डिस्कस कर रहा था, आपने बताया लाइक कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर women are not openly allowed to work in so many kind of things. Right. What were the kind of situations that you would have faced? क्योंकि there will be so many women out there and design and jewelry design, automatically a lot of women get interested into that. चल मेरे साथ तो क्या हुआ कि मेरी जो मिसेज हैं वो बेसिकली आर्टिस्ट थी, लाइक पेंटिंग वगैरह का उनको बड़ा शौक था। तो मैंने कहीं महसूस किया कि भी उनकी जो उनके अंदर जो कला है उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो वैसे तो मैंने पैकेजिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। हाँ, आई थिंक आपने बताया था कि यू स्टार्टेड विद एडहेसिव टेप्स एंड देन यू वेंट इनटू पैकेजिंग टेप्स एंड ऑल दैट, पैकेजिंग फिल्म। एंड सडनली मैंने देखा कि उनके अंदर एक टैलेंट है, तो हम इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो उन्होंने सारे कोर्सेज किए एंड ये भी मैं महसूस करता हूँ कि एक जो वुमेन है, अगर आप उनको घर तक ही सीमित रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमें सोशल के अंदर उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, नेशन को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएगी तो कभी भी उस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। एब्सोल्युटली, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। बिल्कुल, मेरा खुद मानना ये जरूरी है कि
हमारे नेशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड हैज बीन द वुमेन, आवर मदर्स, आवर सिस्टर्स फॉर जनरेशंस, मतलब वो जो एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू समवन एंड ही सेड दैट या माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ, शी इज नॉट वर्किंग. आई सेड शी इज डूइंग मोर वर्क देन यू कुड हैव एवर इमेजिन्ड. हाउ कैन यू से शी इज नॉट वर्किंग? तो वो काफी. मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि इस पूरे दौरान लाइक आपसे बात करके इतना पता लगा कि यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन टेकिंग दैट डिसीजन. आप बहुत सोच समझ के कदम उठाने वालों में से हैं. मैंने इतना गेस कर लिया अब तक. तो मैं इसके अंदर एक चीज जानना चाहूंगा, इस पूरी जर्नी के दौरान राइट फ्रॉम 92 में आपने ग्रेजुएशन करी और 2005 में आपने बिजनेस अपना ज्वेलरी का स्टार्ट किया. बीच में यू वर डूइंग एंटायरली अ डिफरेंट बिजनेस पेरेंट्स के साथ, देन जंप्ड इनटू दिस थिंग और इसको भी इतना बड़ा बना दिया बिजनेस. What has been your driving force apart from your wife? देखिए, मैंने जो अपनी फादर के स्टील बिजनेस से मैंने अपनी नॉलेज गेन शुरू कर रही थी और वो मैं स्कूल से ही वो बोलते थे कि भी आप ऑफिस आ जाओ. एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन करते करते मैंने एडेसिव टेप की इंडस्ट्री जो है हाई पैक के नाम से वो मैंने स्टार्ट की थी. एंड उसके बाद मैं फिर इसके रॉ मटेरियल के अंदर आ गया एंड और भी कई बिजनेसेस मैंने किए, बहुत सारे, पैकेजिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड. तो उसके बाद मैं हर बिजनेस के अंदर ग्रो करता गया. लेकिन जब मुझे ज्वेलरी के बारे में पता चला तो मेरी एक्चुअल में मैं उसको जीना चाह रहा था. ऐसा नहीं कि मैं उसमें सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं उसको काम को एंजॉय करता हूँ एंड अच्छे लोगों के साथ बैठना होता है. और जो ज्वेलरी बिजनेस है वो लोग जो ज्वेलरी खरीदने आते हैं वो शादी के मौके पे आते हैं या किसी ओकेजन पे आते हैं. तो हमें हैप्पीनेस लोगों को देनी होती है साथ में ज्वेलरी के साथ साथ, और ट्रस्ट देना होता है जो जिसके अंदर मैं अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करता हूँ. What is your greatest inspiration? रिगार्डिंग योर ओन जर्नी, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हर एक को किसी ना किसी, आई एम मोटिवेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पीपल आई मीट ऑन द सेट्स लाइक यू. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बहुत बना के चलना चाहिए. लाइक आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ. तो जो इसके अंदर माहिर हो गया तो आपको उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है. नहीं तो यूजुअली क्या होता है, लोग बिजनेस में बहुत ग्रो कर जाते हैं, उनकी हेल्थ सफ़र करती है, उनका मेंटल लेवल ख़राब हो जाता है या उनका सोशल सर्कल बहुत ख़राब हो जाता है. तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए सबको चलना चाहिए. और मैं लोगों से यही बोलूँगा कि आप इसको चारों चीज़ को बैलेंस बना के चलें. मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, यू आर ऑल्सो अटैच्ड टू अ लॉट ऑफ सोसाइटीज. लाल बाग राजा ट्रस्ट एंड नेताजी सुभाष की एक सोशल सर्विस ट्रस्ट एंड ऑल दैट. सो ये हाउ डिड यू गेट अटैच्ड टू दिस एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर गेटिंग अटैच्ड? देखिए, हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें सोसाइटी को, अपनी कंट्री को वो रिवर्स देना पड़ता है एंड दिस इज़ दी एक्चुअल वे. तो इसके अलावा हम बहुत भारत लोक शिक्षा परिषद से भी मैं जुड़ा हूँ. 2015 में मैंने 100 विलेजेस अडॉप्ट किए थे, उसका पार्ट रहा हूँ. एंड कई एसोसिएशंस के अंदर जो है लाइक सेवा भाव से उसके अंदर जुड़ा हूँ. एंड मेरी पूरी फैमिली, मैं ही नहीं, मेरी फैमिली ही बड़ा उसके ऊपर बिलीव करती है. एंड इसके साथ साथ मैं स्पिरिचुअली भी, मेडिटेशन में भी लोग क्लासेस जो है सहज योगा में फॉलो करता हूँ, तो उसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना. वाओ, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. आपने इतनी इनसाइट्स दी इसके लिए. एंड जो यंग लोग हैं जो हमारे इस प्रोफेशन के अंदर जाना चाह रहे हैं, ज्वेलरी के प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, what do you think are the opportunities for them? आजकल artificial jewelry, has that also taken a lot of standing? हालांकि I think that's not the field that you're entirely into, but it is a very good industry in itself. Yes, artificial jewelry भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड काफ़ी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं. इंडिया के अंदर कलाकृति बहुत बड़ी है, हैंडमेड ज्वेलरी है. इवन मेरी वाइफ ने भी जो स्टार्ट किया था वो हैंडमेड ज्वेलरी से किया था, बीड्स ज्वेलरी जिसको बोलते हैं. तो बहुत स्कोप है. आप इसके अंदर पूरा वर्ल्ड मार्केट है. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान भवन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी सारे ज्वेलर्स को संबोधित करते हुए कि हमें ऐसी ज्वेलरी बनानी है जो वर्ल्ड क्लास एंड जो जीरो डिफेक्ट ज्वेलरी होनी चाहिए. तो वो मेरे बात कहीं ना कहीं दिल में लग गई. एंड मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं बेहतर क्राफ्टमैनशिप कर सकता हूँ, कैसे मैक्सिमाइज क्राफ्टमैनशिप के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं जो सब लोगों को पसंद आए और वर्ल्ड वाइड चले.
That is an amazing insight. मतलब you are politically also aware with what is happening in the nation. Yes, yes. And you know, of course, business sector के अंदर आपने काफी चीजें बताई और काफी टिप्स भी शेयर किए. मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, like now that you are known as one of the top most jewelers in the north of India, and especially Delhi NCR के अंदर अगर हम देखें जी. तो you yourself are a leader in a way. Yes. एंड दैट इज द रीजन वाई हमने सोचा कि आपकी स्टोरी सबके साथ शेयर करी जाए. जी. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लीडरशिप? देखिए, लीडरशिप पहले तो मैं कहना चाहूँगा बिजनेस फील्ड के अलावा भी यूजुअली दूसरी फील्ड में जो लीडर होता है वो जो भी काम करता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवा भाव से काम करता है. आपने देखा होगा जितने भी लीडर बने हैं उन्होंने पहले समाज को, कंट्री को, अपनी सोसाइटी को कुछ दिया है तो लोगों ने उनको लीडर माना. लीडर ये नहीं है कि मैं लीडर हूँ. तो आपको सबसे पहले उस कंट्री को, आपको नेशन को, अपने बिजनेस को कुछ देना पड़ेगा और आप उसके बदले में रिवर्स में बिल्कुल लेस चाहेंगे एंड जो डिजर्व करता आप उनको मैक्सिमाइज देंगे तो लोग आपको लीडर मानेंगे. सो इज दैट व्हाट यू वांट टू से कि हम क्या कर रहे हैं पहले वो भी देखें से पहले कि हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको खुद को डिजर्व करना है कि भी आप कुछ हासिल करें. जैसे फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी पहले अपना मास्क लगाएं फिर आप बच्चों को मास्क लगाएं. तो आपको पहले अपने आप को स्टैंड करना होता है, अपने बिजनेस को स्टैंड करना होता है, अपनी फैमिली को स्टैंड करना होता है, तभी आप सोसाइटी को दे सकते हैं. थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे बीच आए और आपने यू हैव शेयर्ड दीस पर्ल्स ऑफ विजडम, यू नो, pronounced and announced in gold and diamond letters and words. जो आपने, मैं इस तरीके से बोलूँगा because that is what suits the best to your profession. And definitely आपने हम लोगों को मतलब काफ़ी रास्ता दिखाया. And there are many people out there, a lot of entrepreneurs, you would definitely agree to the part, especially the one that women actually rule our lives and they are the ones who lead us from the front and because of them we are over here. एक लास्ट बात जो आपने बोली थी कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. सो अ लिटिल थॉट ऑन चैरिटी. व्हाट इज होम? होम इज ऑल्सो योर सोल. होम इज ऑल्सो योर ओन बॉडी. जो आप देख रहे हैं वही आपकी आत्मा के ऊपर उसका प्रिंट पड़ रहा है. वॉट एवर यू आर लिसनिंग, योर सोल इज लिसनिंग. वॉट एवर यू स्पीक, योर सोल इज स्पीकिंग. Whatever you're smelling, you know, the smell of roses, it first goes down to your soul. So that charity begins from home. So let's make an effort ki what we actually want to see, speak and listen, right? And that is what will define our character. And when we define our character, our businesses will also be defined in similar way. And that will lead us to success definitely, because a person full of character will always have a business full of character, and that is what will create your identity. Thank you so much, Cloud Access, India's #1 secure platform, for this wonderful opportunity. rupiapaisa.com, leading from the front, changing the lives of business owners and entrepreneurs around the country, and the #1 trophy manufacturer, Benson Trophies and Awards, for this amazing episode. I love wearing a Tajiri suit. It makes me feel so good. And definitely thank you, Nupur, for giving the touch up on my face today with Nupur Gupta Academy. Thank you so much. We'll see you in the next episode. Sudarshan Ramakrishna Chitlur signing off.